अगर देखने जाए तो इट्स अ 3 स्टेप प्रोसेस. फर्स्ट इज इट स्टार्ट्स विद द कैट एग्जामिनेशन. उसके बाद स्कोर आता है, परसेंटाइल आता है. फिर bases your 10th 12th graduation marks, your percentile score in CAT, and a few other parameters like your job experience, I think there are certain quotas as well जो standard quotas होते हैं वो तो है ही. And so वो सारे के points मिलते हैं. If you go to the site you will get a point table. तो उस हिसाब से you get a points table. It also includes the EWS quota, because diversity is an important point. So diversity के points होते हैं, not only in terms of your gender but also the type of background that you are coming from. So engineering, commerce, arts, humanities, ये type की जो diversity होती है उसके भी अलग अलग points होते हैं. That's your background, and basis that you get a call. Now the call is for now the interview process is again in 2 parts. The first part is AWT, analytical writing test, WAT. AWT या WAT सारे IIMs में अलग अलग होता है, but it's basically a written analytical test. And the second part is your personal interview. तो ये था इंटरवल से पहले का पिक्चर. अब बात करते हैं इंटरवल के बाद के पिक्चर की. जी हाँ, इस पॉडकास्ट में हम कैट एग्जाम, उससे रिलेटेड सब स्टफ्स लाइक इंटरव्यू प्रिपरेशन, कुछ स्ट्रेटेजीज, बहुत सी चीज़ें हम इस पॉडकास्ट में डिस्कस करने वाले हैं. एंड आई होप सो आपको मज़ा आएगा, और मुझे प्लीज़ बताना कि आपको ये दोनों पार्ट कैसे लगे. एंड आई होप सो कैट एग्जाम की एक फील आ रही होगी, और आप भी कैट एग्जाम से रिलेटेड आपके जो डाउट थे सब क्लियर हो जाएंगे, एंड आप कैट एग्जाम को फोड़ भी पाओगे. सो देखते हैं एंड लेट्स सी आवर पॉडकास्ट. आपने इंटरव्यू की बात करी. अब मेरे को कई बच्चों ने कहा है कि यार इंटरव्यू, कोई भी एग्जाम हो ना, उसका एक इंटरव्यू क्रैक करना बहुत मुश्किल होता है. लाइक एनडीए का अगर उसका इंटरव्यू है तो वो अलग इंटरव्यू है. आईआईटी जे के बाद जब हम पेपर देने के बाद आईआईटी में एडमिशन लेने जाते हैं तो वहां भी एक अलग से इंटरव्यू होता है, और इंटरव्यू को सबको क्रैक करना अलग अलग वो होता है. तो लाइक IIM अहमदाबाद की क्या स्ट्रेटेजी रही आपकी क्रैक करने की इंटरव्यू को? Okay, memories. Anyways, interviews are challenging, no doubt, because bachelor level colleges have interviews. धीरे now things have changed. A lot of undergraduate colleges are also having interviews. Yeah. But majority of us haven't faced interviews before we go for such a master's degree. Right. So interviews may so the first aspect about cracking an interview, or rather I would say preparing for an interview, because how to crack an interview, that's a complex jumble of 1,000 different things, and nobody can exactly tell के इस चीज इतना portion, इस चीज का इतना proportion, बस हो गया 1% each, and वैसा नहीं होता. It's very subjective. So the first aspect about preparation is introspection. Introspection essentially means that you need to think about what you have done in your life so far. Yeah. And it also means what you want to do with your life as you move ahead. Right? So that's the first aspect. Usme you start off with so I did this. I'm not sure whether everyone has followed this method. More or less इसी process से सब लोग गए. So you start off with listing down things that you have done so far in your life, and it might from a lemon and spoon race in your first second standard to say any research that you have published or any innovation, patents, awards, recognition, सब कुछ from the smallest to the largest. Now when you do this exercise, you see a journey forming, and you are able to see some of the abilities that you have. Usually क्या होता है ना, लोगों ना खुद का SWOT analysis करना नहीं आता. They do not know what their weaknesses are. They do not know which are their opportunity areas or their threat areas. Right? And this essentially helps them do a SWOT analysis of themselves. ये SWOT जो word है ना, वो बाद में सीखा हूँ मैं. वो ये है जो pre-MBA था, उसको उतना ही पता था कि एक स्टोरी बनानी है लाइफ की.
राइट वो बाद में पता चला कि ये स्टोरी से SWOT एनालिसिस इजी हो जाता है, बट उस टाइम पे इट वाज मोर अबाउट ट्राई टू मेक अ कोहेरेंट स्टोरी ऑफ योर लाइफ एंड ट्राई टू सी हाउ द डॉट्स आर कनेक्टेड. When we think, we are able to connect everything and we are able to place them in particular order, that we start seeing patterns. And the ability to look forward, connecting the past dots, is the visionary mind. Jo it develop it, right? Up till the interview, you first of all need to connect the dots in the past, and based on that data you need to say that okay, ये मेरी strengths है, ये मेरी weaknesses है, where does this fit in as I move ahead in life? So this is the first story एक बन गई, and you are able to say at least with certainty that at least आगे के 2 साल मुझे क्या करना है, MBA प्रोग्राम में लेके where do I see myself, that's all. उससे आगे का सोचना नहीं है. सोच पाओ well and good, उससे आगे नहीं सोच पाओ then it's okay. 2 साल है सोचने के लिए, right? So that's the first part. Second is, interview is not just about yourself. Interview is about everything and anything. So to be aware about everything and anything essential. So you need to know about general knowledge, you need to know about the world politics, what the world history, what's going on in the world right now, the current. If you are coming from, say, a certain background, say I'm coming from a technology background, so I need to know what in that area, right? ऐसा तो है नहीं कि बस चले गए इंटरव्यू में. They want to understand that what are you bringing to the table, and say that if they are planning to take X number of students from a particular background, and they need to know कि what unique ability or what unique quality I'm bringing to the table for my batchmates or for my peers or for the institution at large. Because at the end of the day, as I mentioned, institute is formed of the students that it takes in. That is something you have to learn. Now, simple process again, looks simple, but it requires a lot of reading, a lot of understanding, a lot of discussions, a lot of effort. So for preparing for all of these things, I read newspaper every day. And I try to read articles from different magazines, and books was something that I always loved. So it was an ongoing process. So बहुत books पढ़ी थी पहले, फिर इस time पे थोड़ी बहुत पढ़ ली. But see, when undergraduate and preparing for CAT, management is essential. तो कितना पढ़ पाते हो is dependent on how well you manage. Because it's not just reading, as I mentioned. You need to discuss about it, you need to talk with someone about it, you need to analyze what you are reading, and you need to read some aspects of it. So that's there. And so I was talking about talking with others about it and writing about it. So preparation ke time pe so apart from IIMs as well, Symbiosis, Narsingh Monji, FMS, right? So the non-IIM MBA institutes, they also have an aspect of group discussion or group activity in their selection. Not all, but majority of them have this. So if you are reading on a topic, you also need to be able to discuss it with someone. And IIMs and other IIMs, other institutes also have the part of analytical writing ability, as I mentioned. So उधर लिखना भी आना चाहिए जो पढ़ रहे हो उसके बारे में, ठीक है? तो अब बोलना आना चाहिए जो पढ़ रहे हो, and it needs to be civil. The discussion that you are having with your peers, it needs to be civil. ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट्री डिबेट की तरह बस चिल्ला रहे हो एक दूसरे पे. उस तरह से डिस्कशन मैं समझ गया कि एक जेन्युइन वो होती है. मतलब अगर हम बात करें डिस्कशन की, एक तरीका होता है जो सिखाया जाता है हमें, कि अगर हमारा पॉइंट, एंड दिस हेल्प्स थ्रू आउट द MBA एज वेल, बिकॉज जब जॉब के लिए भी जाओगे तो एक ग्रुप डिस्कशन का एलिमेंट, तो कहाँ पे किसी को वी कैन
you know, we cannot overrule someone directly. तुम किसी के ऊपर नहीं बोलना नहीं सकते हो, नहीं बोला एक भी बार and it's the last minute, तो अगर उनको चांस दोगे तो it looks and this is an important aspect, because when you go into any organization you need to take in everyone's opinion, and these group discussions are something of that sort at a very small level. तो एक तरीका होता है जो सिखाया जाता है, तो that's one. राइटिंग का जो पार्ट होता है, तब राइटिंग में भी you cannot just write down your opinions. You need to present some facts, you need to present some data, you need to present both sides of the story, and then you can talk about your opinion. तो इसकी प्रैक्टिस चाहिए. So every day I used to have at least one group discussion. I used to at least write 3 on 3 topics. So this was something that I used to do on a daily basis for the preparation. मेरे को आपकी कॉन्वर्सेशन से एक चीज समझ में आई है कि लाइक अगर आप किसी व्यक्ति से या किसी पर्सन से अपनी मतलब वो डिस्कस करते हो ना, तो वो आपको उसकी माइंडसेट भी समझ में आता है और अपना तो आपको पता ही है, तो लाइक आप दोनों को मिला के फिर आप डिसीजन लेने में ज्यादा वो रखते हो, मतलब डिसीजन इजीली ले पाते. और 2 लोग से सो ग्रुप डिस्कशन यूजुअली 4 से 5 लोगों में करते थे हम लोग. एक्चुअल ग्रुप डिस्कशन 8-10 लोगों में भी हो सकता है. तो you get multiple sides to the same story. मतलब कुछ लोग उसको नेगेटिव सोचेंगे, कुछ उसका पॉजिटिव सोच रहे होंगे. तो बाय चांस अगर सेम टॉपिक आ गया आगे in your actual GD, तो क्या है, now you can think from multiple perspectives. तो ये जो प्रैक्टिस कर, ये पर्सपेक्टिव हंटिंग होता है कि, एंड यूजुअली अगर तुम सेम ग्रुप में कर रहे हो ये पूरा प्रैक्टिस, तो वो सेम पर्सपेक्टिव्स रिपीट होने चालू हो जाता है. सो एन इम्पोर्टेंट पार्ट अबाउट प्रैक्टिसिंग इज आल्सो दैट यू कीप डूइंग इट विद न्यू पीपल. आप मुझे कैट एग्जाम के बारे में मतलब उसकी स्ट्रेटेजी बता दो, थोड़ी सी टिप्स या स्ट्रेटेजी दोनों चीजें बता दो थोड़ा सा, क्योंकि मेरे व्यूअर्स ये जानना चाहते हैं. कैट एग्जाम, इसके ऊपर एक पूरा अलग से हम लोग 30-40 मिनट का डिस्कशन कर सकते हैं, बट ठीक है. सो ड्यूरिंग माय टाइम व्हेन आई गिव कैट, it was a 3-hour paper. Now since last year or last to last year I think it's a 2-hour paper जब से कोविड आया है. So that's 3 sections: verbal ability, DILR, that is data interpretation and logical, and third is quantitative ability. तो 3 section होता है, and 100 questions spread across the 3 sections, and you are given 3 hours. Okay. So that's the typical design. जो 2 घंटे का पेपर था, वो उसमें they have reduced the number of questions accordingly, and they have also reduced the sectional timings accordingly. हम 3 hours, so we had 1 hour per section, and 1 hour के बाद by default the section has to change. वो बंद हो जाता है एक section. So that's the CAT process. CAT की strategy में thing is that you need to start from the basics, because जो connection होता है for any stream, कनेक्शन छूट जाता है, बिकॉज कैट का जो सिलेबस होता है अप टू 10th स्टैंडर्ड, जो ठीक है 10th स्टैंडर्ड, मैक्सिमम 11th स्टैंडर्ड के कुछ कंसेप्ट जो होते हैं वो, तो उस सिलेबस आता ही नहीं है उसका. अगर इफ यू लुक एट द टॉपिक्स, वो 10th स्टैंडर्ड तक या 10th स्टैंडर्ड ग्रामर तो वैसे भी मतलब इट डजंट चेंज रियली, सो दैट रिमेन्स स्टैटिक, बट उस टाइप का उसका टॉपिक्स रहता है. एंड सो यू हैव टू गो टू द बेसिक्स बिकॉज यू हैवंट रियली बीन इन टच विद दोस थिंग्स. CAT is not an exam of getting marks. CAT of time management and stress management. आपने कैसे मैनेज किया स्ट्रेस और एंजाइटी को उस टाइम पर? हाँ, मैं आ रहा हूँ. सो ये मुझे उस टाइम पे नहीं पता था. जब मैं CAT दे रहा था उस टाइम पे I did not know these terms, that CAT is about these 2 things. टर्म्स पता थे कि टाइम मैनेजमेंट क्या होता है, स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या होता है, बट when I look back to my experience, and over the years I have mentored more than 20 students for CAT, right? Personal mentoring जो दी है मैंने, उस टाइम is that okay, CAT में it is more important to teach people how to manage their time and how to manage their stress, because एक तो as I mentioned, everyone has 1 hour timeline, right? And there are negative markings, right? So ये रहता है, everyone has this on mind
कि will I be able to do a lot of questions in the given time limit, or will I be able to do sufficient number of questions? या मैंने कर दिए तो उसमें कितने सही होंगे. So essentially, if you look at it, it comes down to two things: attempt and accuracy. जिसने की क्रैक कर ली उसका कैट अच्छा जाएगा. राइट. एक अटेम्प्ट कैसे आएगा? कॉन्फिडेंस होगा उस क्वेश्चन में, क्वेश्चन लिखा होगा, टाइप का क्वेश्चन पहले सॉल्व किया होगा, या वो टॉपिक से यू आर फेमिलियर दैट टॉपिक. या फेमिलियर तो एक उससे एक लेवल थोड़ा ऊपर. ओके कंफर्टेबल विद दैट. तो उससे अटेम्प्ट बढ़ेंगे. एक्यूरेसी किससे बढ़ेगी? एक तो स्पीड से, स्पीड ऑफ सॉल्विंग. इफ यू आर बहुत ज्यादा जल्दी कर दोगे तो शायद से जल्दी में गलती कर दोगे. बहुत स्लो जाओगे तो फिर क्वेश्चन कम हो जाएंगे, क्वेश्चन का इश्यू हो गया. तो एक स्पीड एक मेंटेन करती है एक्यूरेसी के लिए. एंड दूसरा ये होता है कि ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो जाते. So, and this is a typical characteristic of every person, especially मतलब हम as an engineer, I know that when it comes to quant, overconfidence आ जाता है. Yeah. And उसका opposite भी आ जाता है कि एक ego आ जाता है कि ये question solve क्यों नहीं हो रहा. Yeah. तो उधर also need to learn how to leave something behind. तो दो चीज है. इसी क्वेश्चन को देख के बस ये तो आता ही है, इसका सीधा आंसर मार्क कर दिया या 2 स्टेप खा गए, एंड वो नहीं करना है. एंड दूसरा एक ईगो नहीं कि यार ये हो क्यों नहीं रहा है मेरे से. टाइम का गेम है अगेन. वो टाइम के हिसाब से, राइट. तो मैंने अपने लिए एक अटेम्प्ट परसेंटेज डिसाइड किया था कि अटेम्प्ट परसेंटेज ऐसे ही मतलब हवा में से नहीं आए, और दूसरा एक एक्यूरेसी परसेंटेज है. सो माय स्ट्रेटजी दैट आई पहले बेसिक सारे क्लियर कर दिए, देन आई वेंट टू सेक्शनल एग्जामिनेशन. सेक्शनल टेस्ट बोलते हैं. तो सेक्शनल टेस्ट में हर सेक्शन की एक टेस्ट आती है, दैट इज वर्बल की अलग, क्वांट की अलग, DILR की अलग. चैप्टर वाइज भी होता है, बट चैप्टर वाइज मैंने इतना नहीं अटेम्प्ट किया था. मेरे साथ जो थे उन्होंने चैप्टर वाइज भी एक स्टेज बीच में किया था. मैं सीधा सेक्शनल लेवल पे गया था, बिकॉज एसेंशियली चैप्टर सेपरेट आउट होके नहीं आने वाले थे. राइट. एक पूरा ही तुम्हें दिखने वाला था, तो माइट एज वेल स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दैट. एंड आई हैड डूइंग एवरीथिंग इन अ गिवन टाइम लिमिट. सो अगर 30 क्वेश्चंस किया तो मैं 1 घंटे से ज्यादा अपने आप को टाइम देता ही नहीं था, बिकॉज 30 क्वेश्चंस में वैसे भी एक्चुअल कैट में यू डोंट गेट मोर देन 30 क्वेश्चंस. The sectional CAT test, you go for the mock test. Mocks are essentially full-fledged CAT examination in a 3-hour time frame in a continuous. वो पूरा एक साथ बैठ के 3 घंटे का पेपर देना होता है. बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो पेपर भी सेपरेट आउट करते हैं, which is useless. To have a practice of sitting at one place for 3 hours, solving 3 sections one after the other. Is the best. Obviously. Right. So that is the third thing. And finally, it's all about mock analysis. Now, mock essentially, again, it's a SWOT analysis of the CAT mocks that I have given. Okay. So this was the Excel sheet that I used was provided last event too. So उसमें कुछ नहीं था. It is a basic Excel sheet. Anyone can make it. So questions है जो भी है, for example एक CAT दी मैंने, and उसमें every section has 30 to 34 number of questions. तो उसमें वर्बल का है, तो वर्बल का एक RC का पैसेज आ गया, तो वो RC किस टाइप का है वो टाइप आइडेंटिफाई करके उसके अगेंस्ट में लिख देता था कि ठीक है, इस RC में 5 क्वेश्चंस थे, 3 सही पड़े, 2 अटेम्प्ट नहीं किए, 0 इनकरेक्ट. पूरा एक एक्सेल शीट. नाउ आफ्टर 5-6 मॉक्स यू स्टार्ट सीइंग पैटर्न्स. पैटर्न्स दिखने लगे तो तुम अपना स्वॉट कर सकते हो कि मेरे स्ट्रॉन्ग है, कौन से एरियाज में मैं वीक हूँ, कौन से एरियाज में. तो उधर मैंने अपना अटेम्प्ट परसेंटेज और एक्यूरेसी परसेंटेज डिफाइन करना चालू किया. ओके. अटेम्प्ट परसेंटेज एसेंशियली कुछ नहीं कि कितने क्वेश्चंस थे इस टाइप के और उसमें से मैं कितने अटेम्प्ट कर पाया. नंबर ऑफ क्वेश्चन
upon total number of questions into 100 gives you your attempt percentage. Yeah. And accuracy percentage is essentially number of questions correct upon number of questions attempted into 100. Yeah. Right. तो ये दो चीजें डिफाइन करना चालू की. And I had set my thresholds कि say for example 90% से ऊपर है मेरा attempt and 80% से सही correct है, accuracy is 80% or more. That's my strength. Weakness is essentially is less than 50 and the accuracy is also bad. Yeah. That's my weakness. Opportunity जहाँ पे मेरे attempt हो रहा है, sorry, opportunity कहाँ पे है जहाँ पे मेरे attempt कम है but मेरी accuracy ज्यादा है. And threat कहाँ है जहाँ बहुत ज्यादा कर रहा हूँ but मेरी accuracy खराब है. कम. Yeah. तो मुझे कुछ तो धीरे so the strategy क्या होती है कि strength जो है वो तो है ही, उसको और strengthen करो. तो स्ट्रेंथ को 20% टाइम दिया, बाकी का 80% आई स्प्रेड आउट ओवर अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स एंड वीकनेसेस. वीकनेस को मैक्सिमम टाइम से 30-40% ऑफ इज वर्किंग ऑन योर वीकनेस एंड द रेस्ट 40% अगेन इट्स डिवाइडेड ऑन योर अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स. वो एक पूरा एक ही वो बन जाता है. Now this strategy is for the initial part where when you have given 5-6 mocks. As you move ahead and you start giving more and more mocks, slowly your strengths start increasing, your opportunities and threats decrease, weakness ideally should decrease. Right? By say the 20th mock, strengths काफी जमा हो गई है, opportunities and threats are and कुछ weaknesses अभी भी बच. So around this time it is essentially कि वो 80% of the strength जो concepts है वो strength में जा चुके हैं. जो 20% वो कहीं opportunity, threat, weakness में बटे हुए. वो strength को कर दो कि वो 80% तो आने ही चाहिए, उसमें कुछ उसमें गलतियां नहीं. बाकी जो है वो अब छोड़ दो, because ideally by your 20th mock you should be say a month away from CAT. उसके बाद जो लास्ट 5-6 मॉक जो भी दो वो इस तरह से दो कि यू आर एक्चुअली गिविंग द कैट एग्जाम. राइट. तो उधर तुम्हारी स्ट्रैटेजी फॉर द कैट डिजाइन होना चालू होती है कि ठीक है इस टाइप का क्वेश्चन है तो मैं यहाँ पे अटकता हूँ तो ये ध्यान रखना है मुझे. स्ट्रेंथ में ही खेल रहे अभी भी, बट अब लेवल प्लानिंग चल रहा है. ये पूरी स्ट्रैटेजी प्री कैट की. ऑन द डे ऑफ कैट स्ट्रैटेजी होती है सब भूल जाओ, कोई स्ट्रैटेजी काम नहीं करने वाली. कोई कुछ भी प्लान करके जाओ वो काम नहीं करने वाला तुम्हारा. सो ऑन द डे ऑफ द स्ट्रैटेजी होती है कि दिमाग पूरा खाली कर दो इन टर्म्स ऑफ थॉट्स. इन टर्म्स ऑफ थॉट्स मैं ऐसा, मैं तो ये करूंगा, अरे यार ये क्वेश्चन आ गया तो मैं क्या करूंगा, ये सब नहीं सोचना है उस दिन पे. उस दिन पे बस इतना 3 घंटे है, अंदर जानना है, हर एक क्वेश्चन को ट्राई करना है, आया आया नहीं आया छोड़. राइट. तो होगा क्या, तुम्हारा लास्ट 5-6 मॉक से दिमाग इस तरह से ट्रेन हुआ है कि तुम अपने स्ट्रेंथ पे ही खेल रहे हो. कैट पे बाय डिफॉल्ट योर ब्रेन विल स्टार्ट वर्किंग ऑन योर स्ट्रेंथ. जो नहीं आ रहा वो ऑटोमेटिकली छूट जाएगा. ऑब्वियसली. एंड प्लेस एग्जाम के पहले तक मतलब आपने कितने मॉक्स दे दिए थे, और मतलब कैट एग्जाम, अब मान लो मेरा कल कैट एग्जाम है तो उससे कितने दिन पहले तक आपने मॉक देना छोड़ दिया था कि लाइक अब मॉक नहीं देंगे, अब कुछ और मतलब माइंड को शांत करते हैं, या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि मॉक प्रिपरेशन अब बहुत हो गई है, लिमिटेड है. तो कितने मॉक देने चाहिए पहले ये बता दो, उसके बाद ये बताना कि कितने दिन पहले आपने मॉक देना छोड़ दिया था, ये लास्ट मोमेंट तक मॉक दिए थे. मैंने मॉक देना चालू किया था जून जुलाई में. तो सपोज नवंबर में है मेरा कैट, so June July of that year I started giving my mocks, which is an ideal time because see if you start earlier than that तुम्हारे concepts नहीं खत्म हुए होते. If you start later than that में sufficient mock and as I mentioned mocks में mocks देना is not important, mock analysis is more important because that is an important, that is what is going to define your performance. mock तो 1000 दे सकते हैं हर रोज की 3, ऐसा नहीं है, बट एनालिसिस नहीं करोगे तो यूजलेस है. So started earlier
जो पहली 5-6 मॉक थी दोज वर स्पेस्ड आउट मतलब हफ्ते में एक हो गई। बाद जो 15 मॉक्स थी दैट वर इन क्विक सक्सेशन, मतलब हफ्ते में 2 जैसा। उसके बाद सितंबर लास्ट वीक से लेके अक्टूबर मिड तक विल बी योर रिविजन टाइम, वेयर यू विल बी सॉलिडिफाइंग that you have which are essentially your weaknesses, so you are solidifying and trying to push them into strengths for the last time. उसके बाद अक्टूबर 3rd वीक के आसपास your final 5 mock start, you give 2 every week, so by November 2nd week you are done with your mocks सारी। 25 अगर देनी है तो 30 देनी है तो उसके हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है, राइट। सो नवंबर के एग्जाम से पहले 10 दिन कुछ नहीं, 0 मॉक, ठीक है, रिवीजन ओके। सो दिस इज व्हाट हैपेंस 10 days बिफोर द कैट एग्जाम। 1 day बिफोर द कैट एग्जाम सब कुछ बंद करके छोड़ दो, you just need to focus कि you have all the necessary documents that you are supposed to have for the CAT exam, जो भी admit, identity proof लेना है, ये सब कुछ है। Do you need anything extra while you are going for the CAT exam? कुछ लोगों को you know they get distracted by sound, so they get earplugs. Yeah. Not the noise cancelling earphones, but earplugs. Yeah, जो swimming यूज करते हैं लोग। कुछ लोगों को और कोई आदत होती है कि so वो स्लॉट पे भी डिपेंड करता है, तो यू नीड टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दैट। एंड एक कुछ रिवीजन नहीं होता, एंड ऑन द डे ऑफ कैट भी कुछ रिवीजन नहीं होता, सीधा सेंटर पे जाओ एंड यू गिव द कैट। सो दैट वाज व्हाट आई फॉलोड, एंड सिंस कैट इज टेकन इन स्लॉट्स, पहले हमारे टाइम 2 स्लॉट थे, एक मॉर्निंग स्लॉट एक आफ्टरनून स्लॉट। तो मेरी ये भी आदत, मैं जो भी मॉक देता था दैट वाज अकॉर्डिंग टू माय स्लॉट। सेम ऑब्वियसली सारी मॉक्स ऐसे नहीं कर पाओगे बिकॉज यू स्टार्ट इन जून, स्लॉट योर स्लॉट कम्स क्वाइट लेट, सो जितनी भी मॉक्स से दे पाओ दैट आई हैड एन आफ्टरनून स्लॉट, सो आई मॉक्स वर यूजुअली इन द ड्यूरेशन ऑफ 1 to 6 PM, तो उसी टाइम पे मैं देता था। तो एक आदत पड़ जाती है, दिमाग को पता रहता है कि यार ये टाइम में मुझे एक्टिव रहना है। और आफ्टरनून इश्यू होता है बिकॉज आफ्टरनून इज द स्लीपी टाइम, या लंच वाला टाइम इज स्लीपी। एंड सेम वे फॉर people those who have an habit of you know staying up late and reading, उनको अगर मॉर्निंग स्लॉट आ गया तो भी उनको प्रॉब्लम होता है, सो दे नीड टू चेंज देयर साइकिल्स टू इन सच अ वे दैट दे वेक अप अर्ली एंड स्टार्ट रीडिंग, तो दिमाग उस टाइम पे एक्टिव होता है। दिस इज यूजुअली यू गेट 5-7 मॉक्स इन टू ट्राई आउट इन दीस स्लॉट्स। ओके, एक क्वेश्चन ये आता है कि लाइक मेरे को कोई भी एग्जाम होता है लाइक IIT जाएगा तो बच्चे कोचिंग को प्रेफर ज्यादा करते हैं, तो क्या IIM अहमदाबाद के लिए कोचिंग को प्रेफर करना चाहिए, मतलब कैट एग्जाम के लिए कोचिंग को प्रेफर करो? हाँ एग्जैक्टली, सो कैट के लिए कोचिंग होता है, एंड सी आई हैव दिस बिलीव दैट कोचिंग कैन गिव यू अ स्ट्रक्चर, पढ़ना खुद ही है, राइट। जो भी मुझे पूछता है कोचिंग में जाओ या ना जाओ, मैं पहले उनको पूछता हूँ कि डू यू वांट टू डू दिस, डू यू हैव द एबिलिटी टू डू दिस, द मोटिवेशन टू डू दिस। अगर खुद में वो है तो 100% कोचिंग के लिए, अगर मोटिवेशन नहीं है फिर भी कोचिंग के लिए जा रहा हूँ, कोचिंग पीपल वोंट बी एबल टू इंस्टिल कॉन्फिडेंस एंड मोटिवेशन फॉर द कैट एग्जाम। या and this is an exam where self study is way more important than graduate level examinations, be it JEE or गुजरात में there is GUJSET, AIEEE जो भी है, right? JEE वो उधर से ज्यादा self study चाहिए। As I mentioned, it's just not the exam is just the beginning, it's not the end. वो और भी काफी steps है। So motivation, definitely go for a coaching institute, कोई भी coaching institute हो, whatever, institutes भी है, local institutes भी है, but at the end
It's पढ़ना more खुद ही about the पड़ेगा। story. पढ़ना हाँ, खुद ही पढ़ना पड़ेगा। राइट। सो सबसे पहले थैंक यू सो मच भाई, आपने काफी कुछ बताया कैट एग्जाम्स एंड आईआईएम अहमदाबाद की, काफी लाइफ आपने अपनी शेयर करी, सारा कुछ मेरे को काफी कुछ सीखने को मिला। सो सबसे पहले थैंक यू सो मच, और आने के लिए थैंक यू सो मच। आज थैंक्स की फॉर having me, and I hope you are successful in this endeavor of yours. थैंक यू भाई, एंड मेरे को काफी कुछ सीखने मिलेगा, और आपकी कॉन्वर्सेशन मैंने काफी कुछ सीखा, और आई होप आपको भी काफी कुछ बताने में मजा आया होगा। तो हाँ, after I went live for a recording after a long time. So good to be back, and yeah, hopefully future में भी collaborate करेंगे वापस। या It will be या मेरे को काफी कुछ सीखने को मिला, तो जरूर आपके साथ एक और पॉडकास्ट करेंगे, आप किसी ना किसी टॉपिक sure. पर जरूर। थैंक यू सो मच।